Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, Pranav. So, we have to finish up our French Revolution today, isn't it? Good evening, Vanchita. Good evening, Ansh. I'm good. How are you, beta? Okay, so till now we have read almost everything about the French Revolution, what happened on 14 July 1789, what were the circumstances that led to the revolution of France in 1789. What were the problems of King Louis XVI reign, the rule of King Louis XVI, what were the problems in there, and how the National Assembly, it in 1791, it created its own constitution and made the king accept that constitution, and hence France was made a constitutional monarchy, right? But still, the National Assembly also could not rule for a longer time, and in 1793 the Jacobean Club and its leader Robespierre, he took over the command of France and established his own the rule of Jacobean there, and he again the group of people that after 1793 that started ruling over that started ruling over France. Now uske baad it was called as Reign of Terror. 1793 and 1794, the year between 1793 to 1794, under the Max Muller Robespierre, that reign was called as Reign of Terror. We know why it was called as, because Robespierre came up with very strict laws and started implementing those laws so strictly that even the people who were earlier favoring Robespierre, they all went against him, right? The convention, the rule of Robespierre, उन्होंने अपना the earlier it was National Assembly, और उन्होंने अपने आप को convention बोला था. अब इस convention का जो rule हुआ 1793 से 1794, it actually followed a policy of severe control over the people. That is why it was called as Reign of Terror, right? Even the bread was rationed, the wages were fixed. इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि कोई सर या मैडम किसी को नहीं बोलेगा, सबको कॉमन सिटीजन्स या सिटियोने बोला जाएगा. देयर वुड बी नो सर और मैडम, ठीक है. लेकिन फाइनली इस जैकोबियन गवर्नमेंट को हराया मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन ने, ठीक है. और उन्होंने अपनी जो जितना भी उन्होंने 5 डायरेक्टर्स बनाए हुए थे जैकोबियन क्लब ने, जो कन्वेंशन ने, देयर वर 5 डायरेक्टर्स एंड 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. एवरीथिंग वाज चेंज्ड अंडर नेपोलियन रूल अगेन, राइट? इतना हमने पढ़ लिया. उसके बाद नेपोलियन आ गया. नेपोलियन के बाद नेपोलियन वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर. नेपोलियन के बारे में ज्यादा आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना हमें पता है कि नेपोलियन was very young. He was born in 1769. 1769 को if he was born, so he was only 25 years of age.
when he seized the power from this Jacobean government. At this young age, he entered army. He rose to the uh, position of general in the army at the age of 24 and 25 years, and he seized the control of फ्रांस, राइट? अब उसके बाद हमने पढ़ना है आज कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ women in that revolution, French Revolution. ठीक है? Now we all know that women were playing quite a role. हमने पहले भी पढ़ा था जब वॉर के लिए सारे चले जाते थे पीछे, women used to take care of their household and they used to earn bread for the family. But all the governments that came under, firstly under King Louis XVI, उनके अंदर तो किसी को भी नहीं था. उसके बाद नेशनल असेंबली ने भी women को एक्टिव सिटीजन्स नहीं बनाया, वो पैसे भी रही. उसके बाद जो कन्वेंशन आई रॉब्सपेयर की, उन्होंने भी काफी चेंजेस लाए, लेकिन तब भी women को राइट टू वोट नहीं मिला. ठीक है? हालांकि सारे लोगों को, all men got right to vote, but women did not get this right to vote. Although women from very beginning played a very active role in French Revolution, right? They pressurized revolutionary government to introduce major reforms in the government, and the women, it wasn't like it was a society where women was also working, right? They worked, mostly all the women of third estate used to work. Second estate और first estate की women जो है वो काम नहीं करती थी. ठीक है? जो थर्ड स्टेट थी वहां पर women जो है वो काम करती थी. ठीक है? जो थर्ड स्टेट के जो गरीब लोग थे, उनकी जो फैमिली की जो women होती थी, they used to sell fruits, vegetables, they used to work as laundress. Laundress होती है जो दूसरों के कपड़े धोती है या लॉन्ड्री को देखती है. और they used to sell flowers, they used to sell fruits, vegetables. So such were the jobs done by these women. Also these women did not study. They were all illiterate. They did not study. Most of the women of third estate did not had access to education, राइट? वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, फिर भी काम करती थी और फिर भी अपनी सोसाइटी में अपना एक योगदान देती थी. ठीक है? सो ओनली द डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेरी प्रॉस्परस पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, दे हैड एक्सेस टू एजुकेशन. ठीक है? एजुकेशन कौन करती थी? एक तो नोबल्स के जो women होती थी, they used to study, और दूसरी थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस फैमिलीज होती थी, उनकी women they had access to education. लेकिन पढ़ने के बाद उनको कोई जॉब नहीं करवाता था. ठीक है? पढ़ने के बाद they were forced or they used to get married. ठीक है? पढ़ने के बाद उनका एक ही काम था, that they used to get married and अपने घर में सोसाइटीज बना के और जो क्लब्स उनके अपने अलग से बने हुए थे, वहां पर they used to play a role. But politically these women, or economically these women, even the educated women, they were not heard of. I mean, nobody used to hear or listen to any of their demands, right? So in order to discuss and voice their interest, women started forming their own clubs, political clubs and newspapers. Right? They started their own clubs and newspapers. There were almost 60 women's clubs in the in whole of France. 60 women club ban gaye pure France mein. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous club, and their demands were that the women should also enjoy same political rights as the men. सबसे बड़ी डिमांड women की क्या थी? That we should also get political rights. Now, can any one of you tell me what do you mean by political right? What are political rights? Political right क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है मुझे?
I'm waiting for the answer. Nobody? Rights that protect citizens from being dominated by the government. नहीं बेटा, political rights क्या होते हैं? Participation through voting or electing. Very good, Mridul. Very good. This is what the political right is. Participation in politics. Political right means participation in politics. Politics mein how can you participate? Either you can cast your vote or you can stand as a candidate. So women wanted these political rights. They also wanted to be leaders. They also wanted to vote. They wanted to be the active citizens. These were the main rights, and the women, they were very disappointed when the constitution of 1791, which was drafted by 1791 का constitution किसने draft किया था? Third estate. क्या कहते थे उसको? Third estate ने तो किया था. What was the name? Convention. No. Convention. National Assembly. National Assembly, yes. Convention ने 1793 में किया था. समझ आया? 1793, 1791 में National Assembly ने Constitution draft किया था. So the women were very disappointed when the Constitution of 1791, they also reduced the women to passive citizens only. ठीक है? What did the women demand? The women demanded right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. That means they wanted political rights, to be elected and right to vote and to be elected in the assembly. ठीक है? तो लेकिन the revolutionary government did not introduce any such laws to improve the position of women. Together with the creation of, but there were certain reforms that came in France during these revolutionary times. What were these reforms? The schooling was made compulsory for all girls also. पहले मैंने बताया कि earlier the poor members of third estate, they did not have access to education. Only the nobles and very prosperous families of third estate, they used to send their girls in convents. Convent school में भेजते थे उनको, convents कहते थे उनको. लेकिन अब जब revolutionary governments ने active citizen तो उनको नहीं बनाया, लेकिन women को बहुत सारी ऐसी चीजें दे दी जिनकी भी जरूरत थी. कैसे? सबसे पहले स्कूलिंग. उन्होंने कहा कि स्कूलिंग सारी गर्ल्स के लिए कंपल्सरी होनी चाहिए. थर्ड स्टेट के, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, जो भी लोग हैं, सबके लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी. ठीक है? Also the fathers could no longer force their daughters to get married. ठीक है? पहले क्या होता था कि थोड़ा सा पढ़ा के fathers used to get their daughters married. लेकिन अभी उन्होंने कहा कि the fathers could not force their daughters to get married. अगर उनकी बेटी की मर्जी होगी तभी वो शादी करेगी, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो शादी नहीं करेगी. ठीक है? And marriage was made into a contract, entered in freely, and was registered with the civil law. Civil law के accordingly marriage को अब register किया जा रहा था. पहले marriages register नहीं होती थी, बस शादी हो गई, पता नहीं होता था, मतलब कोई लीगल आपके पास प्रूफ नहीं होता था कि शादी हो रखी है. ठीक है? अभी शादियां जो है वो रजिस्टर होने लगी. डिवोर्स जो है वो अब women can also file a divorce. ठीक है? ये सारी changes in revolutionary governments ने लाई. Women could now file a divorce. Women could get a marriage certificate. Women could go to school. Women were not, girls now would not be forced to get into get married, and women could now get trained for jobs, right? They could now get trained for job. उनको trained job training भी मिलना शुरू हो गई. उसके बाद छोटे बिजनेस और
आर्टिस्ट की या कुछ ऐसी ट्रेनिंग उनको देना शुरू हो गए, ताकि उनके वो जो छोटे छोटे काम थे, सिर्फ पहले क्या मैंने बताया, क्या जॉब करती थी पहले women, they used to sell fruits, flowers, or they could work as domestic helps in prosperous homes. ठीक है, ये काम होते थे. लेकिन अभी women could now and run small business, they could now get training for various jobs, various skilled jobs and all, right? But the women's struggle for getting political right, it continued. During the reign of terror, Robespierre closed all the clubs, all the women club, and banned the political activities of women. देखो रॉब्सपेयर ने कितना, मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर ने जो कितना ज्यादा गलत तरह से रूल करना शुरू कर दिया था, तभी तो वो इतनी जल्दी उसको लोगों ने नहीं माना, क्योंकि बिकॉज पीपल वेंट अगेंस्ट हिम. क्योंकि देखो उसने क्या किया, विमेन क्लब बंद करवा दिए, ठीक है, और पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई भी विमेन की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी जहां पर वो कुछ अपनी वोटिंग राइट्स मांगते थे या कुछ भी मांगते थे, उनको बैन कर दिया. ठीक है, तो many of the prominent women were arrested and a number of women were executed also under the rule of this Jacobean government. ठीक है, उनको मार भी दिया गया, बड़ों को जेल हो गई और बहुतों को मार भी दिया गया. ठीक है, but the struggle for women's right, it continued for the next 200 years, right? And it was carried out at international level too. Finally, in 1946, women, French women, they got the right to vote. देखो स्ट्रगल कहां से शुरू हुई थी, 18th सेंचुरी से ये स्ट्रगल शुरू हुई थी, जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 का. ठीक है, 1789 के रेवोल्यूशन के बाद इनकी वोटिंग राइट्स की स्ट्रगल चलती रही, विमेन की चलती रही, कई विमेन को जेल हुई, एग्जीक्यूट किया गया, स्टिल ये स्ट्रगल चलती रही एंड इट एंडेड इन 1946. ठीक है, इस डेट को याद रखना, इन 1946 द फ्रेंच विमेन दे गॉट राइट टू वोट. ठीक है, ऑलमोस्ट 200 साल बाद, 170 या 180 इयर्स के बाद women got right to vote. ठीक है, तो आज जो आप लोग एंजॉय करते हो ना, जितने भी राइट्स आप लोग आजकल एंजॉय करते हो ना, कि हमें बड़े अच्छे राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हमारी कंट्री फ्री है, वी आर सोवरेन, और हम सेकुलर हैं, सोवरेन हैं, डेमोक्रेटिक हैं, we are very proud and we have right to vote, everybody has right to vote, equality है यहाँ पे. तो ये सारी equality, liberty, ये democracy, ये सारी चीजें हमारी कंट्री के पास इतनी easily नहीं आ गई हैं. ठीक है, you all have read about the struggle for independence that our revolutionaries had fought. ठीक है, तो उन्होंने कितने 100 सालों तक लड़ते फिर फाइनली 1947 में हमें आजादी दिलवाई, और उसके बाद हमें ये सब जो राइट्स हैं या जो भी आज हम एंजॉय करते हैं अपने फ्रीडम को, वो मिला. ठीक है, आज अगर फ्रांस में वेमेन के पास राइट टू वोट है, तो वो देख सकते हैं अपने हिस्ट्री पढ़ के कि कैसे उनको इस राइट टू वोट तक पहुंचाने में कितने सैक्रिफाइस दिए होंगे विमेन ने. ठीक है, सो दिस वाज ऑल देयर इन द रोल ऑफ विमेन इन द रेवोल्यूशन. ठीक है, नाउ कम्स एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी जो थी वो क्यों की जा रही थी? स्लेवरी इसलिए की जा रही थी क्योंकि फ्रांस से लोग जाते थे कैरेबियन आइलैंड और अलग अलग जगह पे, अलग अलग आइलैंड्स पे या अलग अलग जगह पे, जहां पर वो अलग अलग प्लांटेशंस लगाते थे. ठीक है, और प्लांटेशंस
लगाने के लिए किस किस की प्लांटेशंस लगती थी? इंडिगो था वहां पर, और टोबैको था, शुगर था, ठीक है, शुगर केन जिसे कॉफी थी, कॉफी प्लांटेशंस थी। इन सारी प्लांटेशंस के लिए उनको लेबर चाहिए थी, फ्रेंच लोगों को लेबर चाहिए थी, ठीक है। और वो ये जो जितनी भी ये जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, जितनी भी ये फ्रेंच कॉलोनीज थी, वहां पर जब ये शुगर, कॉफी, इंडिगो प्लांटेशंस लगाते थे, तो वहां पर काम करने के लिए उनको लोग चाहिए होते थे, लेबर चाहिए होती थी। अब अपने फ्रांस से तो वो यूरोपियन लोग तो नहीं जाएंगे वहां पर लेबर करने के लिए, तो वो क्या करते थे कि अफ्रीका से लोगों को लाते थे, स्लेव्स को लाते थे, ठीक है, ताकि वो प्लांटेशंस में काम कर सके, ठीक है। तो स्लेव ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा था ड्यूरिंग इन फ्रांस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ जैकोबियन रिजीम वाज एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जैकोबियन ने एक बड़ा अच्छा रिफॉर्म लाया था, जैकोबियन क्लब्स ने, कि रॉब्सपेयर ने, कि उन्होंने स्लेवरी को, या इट वाज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अभी हम आते हैं ट्रायंगुलर क्यों कहते थे उन्हें। तो जैकोबियन ने एबॉलिश कर दी थी स्लेव ट्रेड फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज। अब फ्रेंच कॉलोनीज कहां पर? फ्रेंच कॉलोनीज इन कैरेबियन, गुनलोप, सेंट डोमिंगो, ये जो जगहें थी यहाँ पे, ये यूरोप के पास पास, फ्रांस के पास पास, तो वहां पर ये सारी फ्रेंच कॉलोनीज थी। कॉलोनी का मतलब समझ आते हो ना, ठीक है। वहां पर फ्रांस ने उन जगहों पे कब्जा किया हुआ था। जैसे हम, इंडिया जो है किसकी कॉलोनी था? इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ विच कंट्री? Britain. ब्रिटेन, राइट, वेरी गुड। सो सिमिलरली हमारी जो फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी, वहां पर बहुत ज्यादा इंडिको, टोबैको, शुगर और कॉफी की प्लांटेशंस लगाई जाती थी, ठीक है। बट द यूरोपियंस वर वेरी रिलक्टेंट टू गो एंड वर्क इन सच डिस्टेंट एरियाज। उन्होंने कहा कि हम इतनी दूर दूर जाके, यूरोप को छोड़ के, अपने फ्रांस या यूरोप को छोड़ के हम इतनी दूर जाके काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? दिस गेव राइज टू ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैं बोलती हूँ ना, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, या व्हाई द स्लेव ट्रेड वाज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ठीक है। सो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड थी बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, ठीक है। ये अमेरिकन आइलैंड्स थे जहां पर कॉलोनीज बनी हुई थी, ठीक है। यूरोप के लोगों ने जाके फ्रांस वाज अ पार्ट ऑफ यूरोप ओनली, तो इज रादर पार्ट ऑफ यूरोप। तो फ्रांस ने, यूरोपियंस ने वहां पर कॉलोनीज बनाई हुई थी और स्लेव्स लेके आते थे अफ्रीका से। कॉलोनी फ्रांस की थी, अमेरिकन आइलैंड्स पे थी, और स्लेव्स आते थे अफ्रीका से, ठीक है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th century when the merchants sailed from ports of Bordeaux and Nantes. बोर्डियो और नेंटिस बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं फ्रांस में, वहां से। और बोर्डियो और नेंटिस के जो बिजनेसमैन थे, दे मेड ग्रेट फॉर्च्यून्स विद दीज स्लेव ट्रेड्स, क्योंकि यही जो दो मेन पोर्ट्स थे, यहीं से वो अपनी शिप्स भेजते थे अफ्रीका में, जहां से वो स्लेव्स को शिप्स के अंदर बंद करके रखते थे। 3 महीने के लिए कंटेनर्स के अंदर दबा के रखे होते थे लोग, ठीक है। 3 महीने की लॉन्ग जर्नी के बाद वो अपनी वहां पर अफ्रीका से लोड होते थे, और अमेरिकन आइलैंड्स में जाके, जहां फ्रेंच कॉलोनीज थी, वहां पर जाके उनको, उनसे स्लेव ट्रेड की जाती थी। तो इट वाज वेरी इनह्यूमन, राइट। तो दे यूज्ड टू sail across Atlantic Ocean for 3 months, and they used to reach to Caribbeans, ठीक है। So this slave trade helped to meet the growing demand of sugar, coffee, tobacco, and indigo in Europe. So both these port cities of Bordeaux and Nantes, they flourished with this slave trade, right?
So nobody used to criticize this slave trade. The National Assembly also, they used to hold long debates on slave trade, but they never, took the brave step of abolishing slave trade, because it would then, because they were in a fear of the opposition from businessmen who were doing this business. That is why National Assembly did not take any major step in abolishing the slave trade. Although National Assembly used to hold debates on these slave trades, but it did not abolish. Who abolished the slave trade then? Jacobian. National Assembly ने slave trade abolish नहीं की थी, क्योंकि it was अंडर द फेयर कि हमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा है स्लेव ट्रेड से, वो कहीं हमारे खिलाफ ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जैकोबियन ने ये स्लेव ट्रेड अबॉलिश कर दी। लेकिन जैसे ही फाइनली द कन्वेंशन which in 1794 legislated to free all slaves, from the French colonies, free all slaves from the French colonies, but it turned out to be a very short-term measure because Napoleon reintroduced slavery. ठीक है, ये स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। स्लेव ट्रेड चलती आ रही थी 17th सेंचुरी से। जैकोबियन ने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, कोई स्टेप नहीं लिया। सॉरी, नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन 1794 में जैकोबियंस ने इसको अबॉलिश कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने इसे रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेव ट्रेड को। बट फाइनली द स्लेव ट्रेड वाज अबॉलिश्ड इन 1848। 1848 में फ्रेंच कॉलोनी से स्लेव ट्रेड को फाइनली अबॉलिश किया गया। अगेन एन इंपॉर्टेंट ईयर, रिमेंबर दिस ईयर 1848। हाँ जी गुरसिमरन, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, Jacobians. No. Jacobians abolished, बेटा. National Assembly decided, but not abolished. But Jacobians उन्होंने abolish कर दी. Jacobians ने कर दी abolish, ठीक है? Yes, Gursimran, you have a question? Let us start up with revolution in everyday life. How this revolution changed. आपको पता है this Negro is a very derogative remark. This Negro term is, you cannot speak it publicly. ठीक है, you can call them blacks, but you cannot call them Negroes. It is, yes, Lakshya, it is an abusive word, a derogatory remark for Africans. ठीक है, so this term was used by these Europeans only for these slaves. वो इन slaves को Negroes कहते थे, ठीक है। और इनको कोई, because they were not having any right to humans के जो right होते हैं ना, human rights, they were having, these slaves had no rights of their own. Everyday life. इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि कैसे रेवोल्यूशन ने धीरे धीरे बुक्स, न्यूज़पेपर्स की मदद से कैसे लोगों की थिंकिंग चेंज की, ठीक है, एवरीडे लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले the most important law that came into effect soon after the storming of Bastille, Palace of Fortress of Bastille, जो उन्होंने 1789 में तोड़ा था, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आया था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। पहले प्रेस जो था वो सेंसर्ड था। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरशिप ऑफ प्रेस? दैट मींस द प्रेस कुड नॉट प्रिंट एनीथिंग ऑन इट्स ओन। इट हैड द प्रेस हो गया, वो जो न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, वो जो पैम्फलेट छाप रहे हैं, जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, everything was controlled. Very good, Lakshya. Yes, it was controlled by
द किंग, ठीक है, किंग की मर्जी से ही प्रेस जो है वो वही लिख सकती थी जो किंग कहेगा लिखने के लिए, ठीक है, दैट मीन्स द प्रेस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ नोबल्स, द किंग्स, ठीक है। लेकिन 1789 के रिफॉर्म्स के बाद सबसे पहले प्रेस को फ्रीडम मिला, ठीक है, फ्रीडम, उस फ्रीडम को कहते हैं एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसर हटाया गया प्रेस के ऊपर से और इट गॉट फ्रीडम, ठीक है। इन ओल्ड regime all written material and cultural activities, books, newspapers, plays, they could only be published if and only if they had been approved by the king or by the censors of the king, right? But now after the declaration of rights, declaration of rights किसने दिया था, नेपोलियन ने कि नेशनल असेंबली ने, बताइए जल्दी मुझे, जैकोबियन ने, नेपोलियन ने कि नेशनल असेंबली ने, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स किसने दिया था? Who gave declaration of rights? Was it given? Assembly. Very good, National Assembly, very good Arnav, very good Pranav. Declaration of rights was given by National Assemblies in 1791. तो जैसे ही Declaration of Rights आया उसके साथ ही उन्होंने freedom of speech and expression दे दिया, ठीक है। Freedom of speech and expression means now the press could publish whatever the press thinks is right. अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट कर सकती थी प्रेस ना, ठीक है। Now the newspapers, pamphlets, books, it flooded into the market of France, जो अलग अलग व्यूज, अलग अलग आइडियोलॉजीज को एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लोगों को बताया कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, ठीक है। हमारे इंडिया में भी जब इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल हुई तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया लोगों को ये बताने के लिए कि आपके ऊपर कोई बाहर का राज कर रहा है, आप सारे मिलजुल के अगर उनके खिलाफ खड़े होंगे तो हम आजादी पा सकते हैं। इसी तरह फ्रांस में भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी थॉट्स स्प्रेड करने के लिए प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज एंड इवेंट्स कुड बी नाउ एक्सप्रेस्ड, गवर्नमेंट के खिलाफ भी आप लिख सकते थे, ठीक है। फाइनली राइट नाउ सो सिर्फ ये न्यूज़पेपर से ही नहीं, प्लेज, सॉन्ग्स, थिएटर, इन सारी चीजों से लोगों को बताया गया कि क्या है लिबर्टी, क्या है जस्टिस, ठीक है, और क्या है राइट्स। इन सब के लिए हमें लड़ना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम में, उनसे कैसे हटाना है और कैसे लोग मिलजुल के उसके खिलाफ खड़े होंगे। सो दिस वाज ऑल डन थ्रू प्रेस। And finally, in the conclusion, we know that in 1804, Napoleon crowned himself as the Emperor of France. ठीक है, और बहुत सारी जो नेपोलियन है उसने कॉन्कर करना शुरू कर दिया नेबरिंग लैंड्स को, फ्रांस के नेबरिंग लैंड्स को बहुत ज्यादा उसने अटैक शुरू कर दिया अपने नेबरिंग कंट्रीज को। इनिशियली नेपोलियन वाज सीन एज अ प्रोटेक्टर। नेपोलियन को पहले देखा गया कि बहुत अच्छा ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स आल्सो, बट और लोगों ने सोचा कि ये एक मॉडर्नाइजर है, दे थॉट दैट नेपोलियन इज अ मॉडर्नाइजर। लेकिन 10 साल के अंदर अंदर 1804 से लेके 1814 तक नेपोलियन ने जो 10 साल रूल किया उसमें इसने बहुत सारी बैटल्स लड़ी, आगे पीछे से अनेक्सेशन, बहुत ज्यादा अनेक्सेशन की, लोग बहुत ज्यादा कॉन्कर किए लैंड, एंड फाइनली ही वाज डिफीटेड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, नेपोलियन वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू in 1815, बैटल ऑफ वाटरलू in 1815, ठीक है। वाटरलू कहां पे है, कोई मुझे बताएगा, वेयर इज वाटरलू? Waterloo is in Belgium,
ठीक है, बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है ये। वहां पे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से इनकी नेपोलियन की जब लड़ाई हुई तो वहां पर नेपोलियन को हराया गया। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज यू नीड टू नो दिस। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसने हराया था, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा कि वाटरलू कहाँ पे है, बट स्टिल यू शुड नो कि वाटरलू इज इन बेल्जियम। वहां पर 1815 की बैटल हुई थी जहां पर नेपोलियन फाइनली हारा। ठीक है, और बहुत सारे, लेकिन उसके जो नेपोलियन के आइडियाज थे, लिबर्टी एंड रेवोल्यूशनरी, जितने भी उसके आइडिया, लिबर्टी और मॉडर्न लॉज, वो सारे वर्ल्ड वाइड फेमस हुए थे। कोई क्वेश्चन पूछा है किसी ने, मैंने पढ़ा नहीं, लेट मी जस्ट चेक इट। यूके के नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम के नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड इज ऑल्सो in Europe. Yes, Duke of Wellington of England, yes. ठीक है, so the ideas of liberty and democratic rights were most important legacy of this French Revolution. Liberty और democratic rights जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में शुरू हुए थे, फिर वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैले। पहले, सबसे पहले मोनार्की को खत्म करना, कॉन्स्टिट्यूशन लाना, लिबर्टी और डेमोक्रेसी लानी, ये दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस के बाद फिर ये राइट्स जो हैं ये पूरे वर्ल्ड में फैले। ठीक है, उसी के साथ इंडिया में टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय, इनका नाम सुना है? टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय, दे वर वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उन्होंने भी यही लिबर्टी और जस्टिस वाले जो आइडिया थे इंडिया में फैलाने की कोशिश की। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द हिस्ट्री बुक नाउ। दिस वाज आवर चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, देखा जाए तो बहुत सारे इवेंट्स नहीं हैं। एक आपकी बुक में बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, पेज नंबर 8, जहां पर सम इंपॉर्टेंट डेट्स हैव बीन गिवन। 1774 में क्या हुआ, 1789 में, 91 में, 92 to 93, 1804 and 1815। शुड आई शो यू दिस? ये डेट्स बेटा पूरी लर्न कर लो, और ये लर्न करने के बाद कहानी की तरह सोचो कि क्या 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 हुआ था। इतने में आपका पूरा चैप्टर समराइज्ड है। This is given on page number 8 of your book. ठीक है, this is very very important, right? 1774 में Louis XVI becomes the king of France, faces empty treasury and growing discontent within society of old regime. 1789 convocation of States General, जब बुलाई थी States General, याद है? Third State forms National Assembly. 20th जून को उन्होंने 1789 20th जून को नेशनल असेंबली एक टेनिस इंडोर टेनिस कोर्ट में बुलाई थी। द बेस्टाइल इज स्टॉर्म्ड, पेजेंट रिवोल्ट्स इन कंट्रीसाइड। 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लाया था नेशनल असेंबली ने। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ किंग एंड गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। 1792-93 में क्या हुआ था, फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक, किंग इज बिहेडेड। ठीक है, किंग लुई 16 को बिहेड कर दिया गया। Then the Jacobean rule was overthrown and a directory of 5 directors started ruling France. Finally, in 1804, Napoleon becomes the emperor of France and annexes large parts of Europe. And 1815, Napoleon defeated at Battle of Waterloo. ये छोटा सा, इतना सा जो समराइज किया हुआ है, ये पूरा चैप्टर इन डेट्स में समराइज हो गया। ठीक है, तो इन डेट्स को अच्छी तरह याद कर देना, किस किस डेट में क्या क्या हुआ था। ठीक है, दिस कंप्लीट्स अ चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप इन योर क्लास इज द सेकंड। हमने एक चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट किया, इंडिया साइज एंड लोकेशन, देन एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और एक चैप्टर हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब दोबारा हम शुरू करेंगे
कल से I mean next time से we still have time. Shall we start up with geography's second chapter, physical features of India? ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया अब स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ठीक है। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी एज अ चैलेंज करेंगे, और फाइनली रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम चल रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। Okay, let us start up with geography's second chapter, physical features of India. Now, this is a chapter which, sorry, people as a resource, yes. Second chapter, people as a resource hai, poverty as a challenge is the third chapter. Okay, thank you, Lakshay. Okay, तो हम अब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि देयर आर 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया होता है जो फिजिकली दिख रहा है इंडिया के। फिजिकल क्या होता है? हमारे फिजिकल फीचर्स क्या हैं? आंखें, नाक, ये लिप्स, ठीक है, स्किन, ये हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। किसकी स्किन का कलर क्या है, नाक बड़ी है, छोटी है, आंख बड़ी है, छोटी है, लिप्स छोटे हैं, पतले हैं, दांत बाहर हैं, अंदर हैं, ये हमारे फिजिकल फीचर्स हो गए। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हो गए कि इंडिया में अलग अलग तरह के जो लैंड हैं, वो क्या लैंड फीचर्स, ठीक है, जो क्रस्ट के ऊपर जो लैंड है पूरा इंडिया के ऊपर, वो अलग अलग तरह से, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर कोस्टल प्लेन्स हैं। कोस्टल प्लेन्स हो गए प्लेन्स क्रिएटेड बाय सीज, जो सी के समुद्र के पास वाले जो किनारे की जगह होती है वो है। कहीं पर आइलैंड्स हैं, ठीक है, और कहीं पर डेजर्ट है, ठीक है। सो देयर आर 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। व्हाट आर दे? नॉर्थ से शुरू कर देते हैं। सबसे ऊपर हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद सेंटर में आ गया पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू की साइड पे आ गए कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इस तरफ वेस्टर्न साइड पे आ गया थार डेजर्ट, जो हमारा है डेजर्ट, और उसके बाद लास्ट में हमारे जो दोनों साइड्स पे हैं वो है आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ना है हमें कि हिमालयन माउंटेन्स क्या हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स क्या हैं, कैसे बने, डेजर्ट के फीचर्स क्या है, आइलैंड ग्रुप्स के क्या फीचर्स हैं, पेनिनसुलर प्लेटू क्या चीज है, और फाइनली कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। सो दिस चैप्टर आई एम गोना स्टार्ट अप विद अ स्लाइड, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दिस स्लाइड विद यू। अगर स्लाइड शेयर होती है तो हम स्लाइड से पढ़ेंगे। ओके, आर यू रेडी टू स्टार्ट अप? बेटा आप यस बोलोगे तो फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये चैप्टर, because we still have 15 minutes. I don't want to waste those 15 minutes. Great. A yes from everyone? Good. पहले मुझे एक और yes दे दो। Have you all understood French Revolution well? Good. ये कहानी अब याद रखना क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। 1789 से जब किंग लुई 16 के खिलाफ शुरू हुए थे, उसके बाद 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 1792-93 में जैकोबियन क्लब्स का कन्वेंशन ने रूल किया, उसके बाद डायरेक्टरी ने रूल किया, उसके जैकोबियन क्लब के बाद 5 डायरेक्टर्स थे जिन्होंने 2 लेजिस्लेचर्स बनाए, उन्होंने रूल किया। फिर 1804 में नेपोलियन आ गया और 1815 में फाइनली नेपोलियन वाज डिफीटेड। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स आए, क्या हुआ हम बाद में देखते हैं, सोशलिज्म और रशियन रेवोल्यूशन में, ठीक है। ओके, सो अब हम आई एम गोइंग टू शेयर अ स्लाइड विद यू। लेट मी सी कितना इजी है इसमें शेयर करना।
document device. Is it clear? Can you all see this slide here? Is it visible to everyone? Great. Good. So India has all major physical features on Earth. जितने भी physical features इन Earth पे होते हैं ज्यादातर इंडिया में वो normally, क्योंकि इंडिया शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि इंडिया is a very very diverse country. ठीक है, वो डाइवर्सिटी सिर्फ हमारे लोगों में, कल्चर में ही नहीं है, हमारी ज्योग्राफी में भी है. ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की ज्योग्राफी है उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है. और इसी डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से ही हमारी कल्चर और हमारे जो जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनमें भी डाइवर्सिटी है. सो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज द रीजन बिहाइंड so many different type of cultures that are existing in India. ठीक है, so we have mountains, plains, deserts, plateaus and islands. ठीक है, even the soil color varies from place to place. India में हर तरह का soil मिलता है, red soil, laterite soil, arid soil, alluvial soil, जो black soil, almost हर तरह के soil भी मिलते हैं. ठीक है, India is a large landmass formed during different geological periods. So the अलग-अलग जो इंडिया कैसे बना, अब आपकी जो नया सिलेबस है ज्योग्राफी में, उसमें this has been this theory of plate tectonics and theory of continental drift. This has been deleted from your syllabus. ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं. ठीक है, ऐसा क्या रीजन है कि प्लेटू को ओल्डेस्ट लैंडमास कहा जाता है. सो यू शुड नो द आंसर्स ऑफ ऑल सच क्वेश्चंस. ठीक है, probably you might be knowing also, but it is my duty to tell you that I really would like to share. No, you don't have to, Mitul, you don't have to do all these theories. ठीक है, it has been deleted from the syllabus now. Theory of plate tectonics नहीं है, theory of continental drift नहीं है, हमने सीधा यहाँ से शुरू करना है, major physiographic divisions of India से. ठीक है, तो ये हम अभी शुरू करेंगे. पहले हम पढ़ते हैं theory of plate tectonics. आज जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ ना, ये क्लास आपके सिलेबस में नहीं आ रही. ठीक है, बट वाई वी आर स्टडिंग इट, बिकॉज वी शुड नो. ठीक है, इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले अगर आपको बेटा क्लियर नहीं कुछ दिखता तो आप अपने अपनी स्क्रीन पे एनलार्ज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं इसे और फिर देख सकते हैं. ठीक है, जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट द क्रस्ट ऑफ अर्थ, the crust, you all know that earth is made up of different layers. Core, mantle, crust. ठीक है, earth is made up of different layers, core, mantle and crust. Crust is the uppermost layer of the earth. This crust is made up of not a single landmass but of different landmasses broken at different places. Right? So this whole earth is made up of almost 7 major plates. Every landmass is called as a plate.
हमारे जो अर्थ के ऊपर पूरा का पूरा क्रस्ट है वो पूरा का पूरा टूटा हुआ है बीच बीच में से, ठीक है। और उन उस टूटे हुए क्रस्ट को कहते हैं, अलग अलग जो पीसीज हैं उनको कहते हैं प्लेट्स, ठीक है, उनको प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो क्रैक्स हैं, ठीक है, वो क्रैक्स के हिलने डुलने से जो है अर्थ में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से जो है वो ये जो प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट होती है। एक होती है कन्वर्ज, कन्वर्ज होना मींस एक दूसरे के पास आना। जब कन्वर्ज होती है तो एक प्लेट या नीचे चली जाती है, जो भारी होगी बड़ी होगी वो सबसाइड कर जाएगी, नीचे चली जाएगी, हल्की वाली ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। इससे अर्थक्वेक्स आते हैं और ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। जो प्लेट ऊपर चली जाती है उससे ब्लॉक माउंटेन्स भी बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी है हमारी डाइवर्ज, डाइवर्ज होती है एक दूसरे से दूर जाती हैं जब प्लेट्स, उनके बीच में फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स आ जाती है अर्थ के बीच में। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव वॉच्ड द मूवी, मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी 2012, देखिए सबने मूवी 2012? जिसमें कि एक बहुत बड़ा अर्थ पे एक कैटास्ट्रॉफी आ जाती है, ठीक है, हाँ एपोक्लिप्स आ जाता है। और अच्छा वंशिता आपने नहीं देखी है, बट इट इज अ वेरी फेमस मूवी, यू शुड वॉच इट, इट्स अ गुड मूवी, गुड टू वॉच। बहुत सारी इसमें ऐसे कंसेप्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स दिए होते हैं जो सुनने में या अच्छे रहते हैं ज्योग्राफी को समझने में। तो उसमें भी बताया हुआ कि अर्थ में क्रैक्स आ रहे हैं बड़े बड़े, वो क्रैक्स इसलिए आते हैं बड़े बड़े क्योंकि 2 प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, प्लेट बाउंड्रीज जो है वो उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स सॉइल की बन गई होती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो प्लेट्स जुड़ गई हैं, लेकिन वो जुड़ती नहीं है, बीच में फॉल्स क्रिएटेड रहते हैं, और जब वो नीचे से टूट के अलग होती हैं तो उसी तरह ऊपर भी क्रैक्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं, मतलब ना दूर जाती हैं ना पास आती हैं, एक दूसरे से रगड़ खा के आगे पीछे हिलती हैं। सो दीज आर द 3 ways in which the plates move, ठीक है। These are the 3 type of plate movements. अब इसी theory of plate tectonic से जुड़ी है अगली theory of continental drift, ठीक है। What do you mean by continent? How many of you have watched the movie Ice Age Continental Drift? मूवीज देखा करो अच्छी अच्छी बेटा, ठीक है। ये सारी मूवीज जो हैं दे आर गुड टू वॉच। वैसे किस किसने देखी है आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? देखी है किसी ने? वंश ने देखी है, प्रणव ने देखी है, अक्षय ने देखी है, गुड। तो उसमें आपको पता है कौन सा कंसेप्ट उन्होंने बताया हुआ है? सबसे पहले तो आइस एज वाली मूवी है, वहां पर आइस एज का कंसेप्ट बताया हुआ है, अर्नब ने भी देखी है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी है, ये जो जितनी भी आइस एज की मूवीज है ना, ये अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम्स बताए हुए हैं यहाँ पे। एक तो ये एंटरटेनमेंट के लिए, हु इज दिस विनोद? ओके, तो ये जितनी भी प्लेट मूवमेंट्स होती है ना बेटे, अभी मैं बताती हूँ प्लेट मूवमेंट्स के बारे में दोबारा। ये जितनी भी आइस एज की मूवीज है ना, ये हर जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में है हर एक मूवी, ठीक है। तो कार्टून मूवी है लेकिन बड़े अच्छे जियोलॉजिकल पीरियड्स इन्होंने एक्सप्लेन करके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है जो ये प्रूव करती है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक सिंगल लैंड मास थे। कैन यू ऑल सी दिस डायग्राम्स है? वो सिंगल 225 million years ago the earth was a single land mass on earth was a single land mass called as Pangaea, और वो आगे पीछे पूरी की पूरी ब्लू सी थी, सी का नाम पेंथाल्जा था। पेंजिया और पेंथाल्जा, पेंजिया हो गया लैंड और पेंथाल्जा होगी सी, ठीक है। धीरे धीरे ये आपस, ये जो प्लेट में जो क्रैक्स थे
जहां जहां क्रैक्स थे वहां वहां से वो कॉन्टिनेंट्स दूर दूर जाना शुरू हो गए। ठीक है, अब डोंट थिंक दैट दीज लैंड मासेस आर मूविंग ऑन सी, वी आर नॉट फ्लोटिंग ऑन सी, वी आर फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड लावा इन मेंटल। कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे जो लैंड मास है वो समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इवन जो ओशंस हैं वो भी, उनके नीचे भी क्रस्ट आता है। इवन द ओशंस आर पार्ट ऑफ क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट होता है उनके नीचे, पतला वाला। Who is this? I'm going to remove this. I don't know who was this new master, but I've removed him. I don't know why he was creating such troubles here. Okay, तो लॉरेजिया और गोंडवाना लैंड दो क्रस्ट बन गए, दो लैंड मासेस बन गए। ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर हो गए, ये दो लैंड मासेस बन गए। उसके बाद और दूर दूर होना शुरू हो गए 100 मिलियन ईयर्स के बाद। ये देखो, कैन यू सी दिस थर्ड डायग्राम, थर्ड पिक्चर है? थर्ड पिक्चर दिख रही है बेटा सबको? यहाँ पर सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होना शुरू हो गए। साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप जो है पहले एक ही कॉन्टिनेंट था। अफ्रीका अलग हो गया, एंटार्क्टिका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, और इंडिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक लैंड मास है जिसे इंडिया कहा जा रहा है। बेटा अभी 2-4 मिनट रहते हैं फॉर द क्लास। ठीक है, और उसके बाद इंडिया जो है वो धीरे धीरे मूव करता करता 100 मिलियन ईयर देखो, देखो उसकी पोजीशन कहाँ थी इंडिया की, सदर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन वो धीरे धीरे मूव करता हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आया। ये देखो ये वाली पिक्चर, ब्लू और ग्रीन वाली, यहाँ पर पहुंचा और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। और ऊपर जाते जाते ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। जब ये छोटा सा इंडियन लैंड मास, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, हमारा सदर्न इंडिया, जो हम कहते हैं ना प्लेटू है, प्लेटू इग्नियस रॉक से बना हुआ है, वो है हमारा ये वाला पोर्शन ग्रीन वाला। ये जब ऊपर बढ़ा और यूरेशिया से टकराया तो बीच में निकल आए, बीच में बन गए हिमालयन माउंटेन्स। समझ आया बेटा ये कैसे इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो टकराया यूरेशियन प्लेट से, ऊपर वाली प्लेट से, और वहां पर क्या बन गए हमारे हिमालयन माउंटेन्स। सो दिस इज हाउ हिमालयाज वर फॉर्म्ड। पहले जो सी था, जो इंडियन लैंडमास और यूरेशिया के बीच में जो पानी था, उसका नाम टेथिस सी, उसे टेथिस सी कहते थे। ठीक है, और उसके साथ जाके टकराया हमारा इंडिया और वहां पर बन गया हिमालयन माउंटेन्स, ऊपर इमर्ज हो गए। ठीक है, तभी कहते हैं ना हिमालय के ऊपर फिश के भी फॉसिल्स मिलते हैं। पहले वो समुंदर के नीचे, टेथिस सी के नीचे था वो लैंडमास, लेकिन जैसे ही दो लैंडमास आपस में टकराए, एक लैंडमास ऊपर हो गया, एक नीचे चला गया। जो ऊपर हो गया उससे हिमालयन माउंटेन्स बन गए, तभी उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। Have you understood this concept? How Himalayas were formed? Great. From next class, we are going to start up with the physiographic divisions, Himalayan mountains and all. All right. So I'm going to end the class now. Thank you so much, everyone. You can leave the class now. Thank you, beta. Thank you, everyone. क्या बेटा मुतुल, क्या चाहिए बच्चे आपको? क्या नहीं समझ आया? थेरी कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट?
ओके, सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए और नीचे आके फिर इंडिया का जो लैंड मास अलग अलग हो गए। जो इंडियन लैंड मास था, जो हमारा पेनिनसुलर लैंड मास था, वो जो है वो ऊपर की तरफ जाना, यूरेशिया की तरफ जाना शुरू हो गया ऊपर। ये देखो, इस पिक्चर में पूरा बताया हुआ है। कैन यू सी दिस रेड ब्लू एंड ग्रीन पिक्चर है? ये जो इंडियन प्लेट थी, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। ये मेडागास्कर साउथ अफ्रीका के जो पास है वो जगह, वहां से टूट के हमारा लैंड मास ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, टेथिस सी। ये बीच में जो जगह है उसे टेथिस सी कहते हैं। जब ये दोनों ऊपर वाला यूरेशियन लैंड मास और इंडियन प्लेट टकराई तो वहां से हिमालयाज इमर्ज हो गए। ऑलराइट मितुल, अगर अभी भी नहीं समझ आया, हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा सकते हैं इसे। ओके, ग्रेट। नाउ you can also leave the class, bache. Okay, thank you everyone.